Good morning, children. This is your GK class, and today we will be doing chapter number 26 Familiar Faces. Now, in this chapter, there are some pictures given about different personalities or celebrities, and you have to identify them and write down their names below. So, there are 6 pictures on this page and the hint is given below in the green box. Their names are given. You have to write the correct names. So I will help you. The first picture you can see is of Deepika Padukone. Now, who is Deepika Padukone? Deepika Padukone is the Indian actress in Bollywood. So she is a superstar or the actress. She's working in the film industry and is very popular, and she is married to Ranbir Singh. Okay, so Ranbir Singh is also a Indian actor in Bollywood. His photograph is also given alongside. Now next one is Rajnikant. Now Rajnikant is also a very popular actor in South movies. So he is an Indian actor. The movies he works are developed in the South, means the Telugu films. So he is a prominent character or the protagonist or the main character in the movie. Now third one is Ranbir Singh. Now Ranbir Singh is also an Indian actor. He is the prominent actor in the Bollywood and in the Hindi cinema. Okay, so he is married to Deepika Padukone, the person I have told you at the first place, Deepika Padukone. She is married to this Ranbir Singh. Now the fourth one is Amitabh Bachchan. He is very popular person in all over India as well as abroad. He is also known as the man of the person of the decade, or person of the century, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में महानायक. Okay, he has been awarded with many civilian awards like Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and many other awards. There are several movies he has worked in, and you might have also watched some of the movies. And now we come to the fifth one is Karan Johar. Karan Johar is a Indian film director. He is a director as well as producer also. So basically he's a director, sometimes he produces the film also. So director means who directs the film, means इन जो डायरेक्टर का काम होता है मूवी में, वो डायरेक्शन देना होता है, इंस्ट्रक्शन देना होता है कि मूवी को कैसे शॉट उसके होने चाहिए, मूवी के शॉट्स मींस मूवी को कैसा प्ले करना चाहिए, मूवी में कैसे कैरेक्टर्स होने चाहिए, मूवी में कैरेक्टर्स का क्या रोल है, क्या उनको स्टेटमेंट्स बोलनी है, क्या स्क्रिप्ट है उसका पूरा देखना है, उसमें क्या एडिट करना है, सब कुछ देखना होता है. और उसमें डायरेक्शंस या जो डिसीजंस लेता है वो एक डायरेक्टर लेता है. तो जो मेन पर्सन होता है जो मूवी बनाने में काम आता है, दैट इज़ अ डायरेक्टर. वैसे तो बहुत सारे पर्सन्स होते हैं लाइक प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, सिनेमेटोग्राफर, कोरियोग्राफर, एडिटर. ओके, सो देर आर मैनी अदर पर्सन्स, बट सारे पर्सन्स को जो एक साथ कंबाइन करके एक साथ उनके साथ काम करना होता है, उनको सबको एक साथ एक चीज़ में उनको डायरेक्शन देना होता है, वो किसका काम होता है? डायरेक्टर का. नाउ नेक्स्ट वन इज़ सिक्स्थ वन इज़ उस्ताद अमजद अली खान. ही इज़ द बेस्ट
sarod player. Sarod is a musical instrument. He used to play sarod. So he is also a renowned personality in India. He has been awarded with the second highest civilian award like Padma Vibhushan. ठीक है? So children, these are the famous personalities. We come to the next chapter, that is chapter 27, kitchen appliances. Now in kitchen appliances you will see there are 6 different pictures are given. You have to write down the name of those things which are given. You have to write down the names what these are. Now the first one is, I make crisp brown toast for breakfast. Now what is it? It is a toaster. What is the work of a toaster? Toaster is an electronic device by which you can toast your breads. आप ब्रेड खाते हो ना, तो ब्रेड आप जब पैकेट से निकालते हो तो उसको इसी टोस्टर में डाल देते हो, तो ये आपकी ब्रेड को टोस्ट कर देता है, मीन्स उसको एकदम हीट से उसको एकदम क्रिस्पी बना देता है, तो वो आपको खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे. So this is the work of a toaster. Now second one is, I can remove salt and impurities from drinking water. You might have seen this device in your kitchen also. This is RO water purifier. ठीक है? RO water purifier. What is RO? RO means reverse osmosis. What is the work of RO water purifier? It purifies द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन दी वाटर. जो वाटर हमारे घर में पानी आता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लाइक लेड होता है, फ्लोराइड होता है, केमिकल्स होता है, सॉल्ट होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं. ठीक है? तो उन सारी चीज़ों को वाटर से निकाल के साफ़ कर देना होता है और आपको एकदम प्योर वाटर वो निकाल के देता है, ताकि उससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है? आपको कोई डिजीज़ ना हो उस वाटर से. तो ये काम है वाटर प्योरीफायर का. नाउ द थर्ड वन इज़ अ माइक्रोवेव. इट इज़ अ माइक्रोवेव. नाउ व्हाट इज़ अ माइक्रोवेव? माइक्रोवेव, एज इट्स नेम सजेस्ट, इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कुक फूड. ठीक है? कुक फूड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव्स. देखो बेटा, जब आप खाना बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? आप गैस स्टोव यूज़ करते हो, तो उसमें क्या निकलती है? गैस निकलती है, जिसको आप लाइटर से बर्न करते हो तो उसमें से फ्लेम्स निकलते हैं, आग के फायर के फ्लेम्स निकलते हैं, तो वो आग से जलता है. तो उसके ऊपर जब आप खाना बनाते हो तो वो आपका खाना फायर के हेल्प से बनता है. लेकिन इसमें कोई फायर का यूज़ नहीं होता, फिर भी खाना बन जाता है, फिर भी पक जाता है खाना. तो वो कैसे? तो इस डिवाइस में इस डिवाइस के अंदर माइक्रोवेव्स होती हैं. जैसे बहुत सारी वेव्स होती हैं, गामा वेव्स, अल्फ़ा वेव्स, रेडियो वेव्स, वैसे माइक्रोवेव्स भी होती हैं. ठीक है? तो जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी की होती है, मीन्स उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, तो वो हीट कर देती, बहुत ज़्यादा हीटिंग कैपेसिटी होती है उनके अंदर. तो वो जहाँ भी प्रेजेंट होंगी तो वो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट या सराउंडिंग होगी उसको बहुत ज़्यादा हीट कर देंगी. तो इसलिए हम इसका जो एक फ्लैप होता है, एक ढक्कन होता है इसका, उसको हम जब खोलते हैं तो उसके अंदर एक स्पेस होता है, तो उसमें हम अपना खाना रख देते हैं. ठीक है? अपन जो भी फूड है, रॉ फूड रख दिया और उसको ढक्कन को बंद करके और टेम्परेचर सेट कर देते हैं कि हाँ, हमें 100 डिग्री या 200 डिग्री पे खाने को पकाना है. तो उस टेम्परेचर सेट कर दिया, टाइमर सेट कर दिया कि हाँ इतनी देर तक पकाना है, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं. उतनी देर के बाद वो खाना अपने आप पक जाता है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है. द फूड is cooked inside it. So this is the work of microwave. Most of you have seen this device in your kitchen also. Now next one is a refrigerator. Fourth one is a refrigerator. What is the refrigerator? Refrigerator means it freezes the liquid or water or keep the other eatable things at a cool temperature. Okay? तो रेफ्रिजरेटर का क्या काम होता है? ये भी एक किचन अप्लायंस है, ये आपको किचन में मिलेगा.
तो इसके अंदर भी आप जब इसका डोर खोलोगे तो इसके अंदर आपको काफ़ी स्पेस मिलेगी। उसके अंदर आप कोई भी चीज़ रखोगे तो वो सारी चीज़ें एकदम कूल टेम्परेचर मीन्स वैसे तो नॉर्मल टेम्परेचर रूम का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट इस रेफ्रिजरेटर के अंदर अराउंड आप 10 डिग्री भी रख सकते हो, 5 डिग्री टेम्परेचर भी रख सकते हो। तो एकदम ठंडा टेम्परेचर रहेगा, माइनस में भी चला जा सकता है। तो वो चीज़ें जो हैं, जो भी इसके अंदर चीज़ रहेंगी वो ठंडी रहेंगी, और ठंडी रहने से उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस उसके अंदर नहीं रह सकता है, ज़िंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका जो भी खाना अंदर रखा है वो सेफ़ रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई वेजिटेबल बनाई, ठीक है, या कोई मिल्क है आपका, ठीक है, तो वेजिटेबल आपने जब बनाया तो उसको आपने थोड़ा सा आपने वेजिटेबल खाया, उसके बाद आपने जो बच गया उसको आपने बोला कि मैं इसको 2 घंटे के बाद खाऊंगा थोड़ा सा, या 2 घंटे के बाद मेरा एक फ्रेंड आएगा मैं उसको दूंगा। तो वो वेजिटेबल अगर आप बाहर कहीं खुले में रख दोगे तो वो थोड़ी देर के बाद वो ख़राब हो सकता है, स्मेल आ सकती है उसमें, या कोई बैक्टीरिया जा सकता है उसमें, या गंदगी जा सकती है उसमें। तो उससे अच्छा है आप उसको फ्रिज में रख दो, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, तो आपने एक चीज़ देखी होगी, जब कोई खाना काफ़ी पुराना हो जाता है, एक दिन पुराना हो जाता है, तो उसमें से एक फाउल स्मेल आने लगती है। तो वो स्मेल क्यों आती है? वो स्मेल एक्चुअली इसलिए आती है क्योंकि उस खाने का डिकम्पोजिशन शुरू हो गया है। व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन? जब उसमें बैक्टीरिया उस खाने को खाना शुरू कर देते हैं, डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक स्मेल गैस निकलने लगती है, वो फाउल स्मेल होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से उस खाने में भी एक फाउल स्मेल निकलना शुरू हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये खाना तो ख़राब हो गया है। तो उसको उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, ताकि उसमें बैक्टीरिया तो ज़िंदा रह ही नहीं सकते हैं फिर, तो वो खाना को ख़राब कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा खाना सेफ़ रहता है फॉर सेवरल आवर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज़ ब्लेंडर मिक्सर। व्हाट इज़ ब्लेंडर एंड मिक्सर? मिक्सर मीन्स जो मिक्स करता है चीज़ों को, ब्लेंडर मीन्स जो छोटे छोटे पार्ट्स में काट काट के ब्लेंड करता है। ठीक है, तो पहले अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लाइक बनाना शेक आपको पीना है, ठीक है, सो यू वांट टू मेक अ बनाना शेक, तो व्हाट विल यू यूज़? यू विल यूज़ अ ब्लेंडर मिक्सर। यू विल पुट सम banana after peeling it, after removing the cover of that banana, उसके बाद आप क्या करोगे, उस बनाना को उसमें इसमें जार में आप डालोगे, और इसके जार के अंदर क्या होती हैं, ब्लेड्स लगी होती हैं, और वो ब्लेड्स बहुत तेज़ी से घूमती हैं। और वो कैसे घूमती हैं? क्योंकि उन ब्लेड्स जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं, नीचे उसके एक मोटर लगी होती है। ठीक है, तो वो मोटर जैसे ही बहुत तेज़ घूमती है तो वो ब्लेड्स को भी घुमाती है। तो वो ब्लेड्स क्या करती है, पूरे जो भी चीज़ उसके अंदर होगी उस जार के अंदर सबको क्रश कर देंगी। ठीक है, ब्लेंड कर देंगी, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगी, और फिर उसको जो है वो मिक्स करके एकदम शेक बना देंगी। इतना ज़्यादा मिक्स हो जाएगा वो, इतना ज़्यादा मिक्स हो जाएगा कि एकदम वो लिक्विड जैसा हो जाएगा बनाना। और कैसे हो जाएगा लिक्विड जैसा? क्योंकि उसमें आप मिल्क भी डालोगे थोड़ा सा। ठीक है, तो जब आप बनाना डालते हो, मिल्क डालते हो, थोड़ी सी शुगर डालते हो, फिर ड्राई फ्रूट्स डालते हो आप, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब डालते हो और जब आप मिक्सर को चलाते हो तो सारी चीज़ों को मिक्स कर देता है और एक कॉमन लिक्विड बना देता है। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ ब्लेंडर एंड मिक्सर। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ आई कैन हेल्प यू गेट रिड ऑफ स्मोक। येस, नाउ this is also a kitchen appliance. So this is used for chimney purpose. It is a chimney. So चिमनी का काम क्या होता है? चिमनी का काम ये होता है कि जैसा कि आपने किचन में कोई खाना बनाया, ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने कुकर चढ़ाया हुआ है, प्रेशर कुकर, ठीक है, उसमें जब सीटी आती है तो उसमें क्या होता है, पूरी गैस कुकर की निकलती है ना, तो धुआं सा निकलता है। तो वो जो होता है वो किचन के अंदर ही रह जाता है। तो उसको किचन के अंदर ही रहेगा तो किचन में आपको सफोकेशन सी महसूस होने लगेगी, आपको यू विल स्टार्ट कॉफिंग और स्नीजिंग। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, उस गैस को, उस धुएं को हमें किचन से बाहर निकालना है।
तो उसको जो काम होता है चिमनी का, वो यही काम होता है कि वो जो आप गैस पे जो भी चीज़ें बना रहे हो या पका रहे हो, तो उस जो धुआं या स्मोक जो निकलता है उसको कैसे आपको उस किचन से बाहर निकालना है, तो वो काम होता है चिमनी का। सो दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक चिमनीज़। पहले ओल्डन डेज़ में ये चिमनीज़ ऐसे ही बनी होती थी, जिसमें धुआं अपने आप, वो लाइट होता है, लाइट एयर होती है, तो वो अपने आप उठ के उसी चिमनी से घर से बाहर निकल जाता था। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉनिक चिमनीज़ आ गई हैं और ये क्या करती हैं, सक्शन का काम करती हैं। पूरे धुआं जो होता है किचन में उसको खींचती हैं अपनी तरफ, और खींच कर कहाँ बाहर निकाल के फेंक देती हैं किचन के बाहर। ठीक है, तो इसमें एक सक्शन मोटर लगी होती है जो ये काम करती है। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ चिमनी। सो एनीथिंग यू वांट टू आस्क चिल्ड्रन about these kitchen appliances or the previous chapter, you can ask me. Thank you, children.